Good morning, dear children. Now I am going to start in the first video of Democratic Politics Part 2, the first chapter, Power Sharing. And with this chapter, we will continue the tour of democracy that we started last year. And we noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. लास्ट ईयर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में सारी शक्तियाँ गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन में नहीं होती हैं. एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के डिज़ाइन के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट शेयरिंग जो है पावर की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 chapters we carry this idea of power sharing forward. We start with 2 stories from Belgium and Sri Lanka, and both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy. तो ये जो 2 केसेस हैं, 2 स्टोरीज़ हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की, इनसे ये निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में ज़रूरी क्यों है. व्हाट इज़ द नीड for power sharing in democracy, and this allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. Okay, now let's start the next topic, Belgium and Sri Lanka. Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, and it has borders with Netherlands, France and Germany, and it has a population of a little over 1 crore. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking. Then we see that in Belgium there is ethnicity. There is ethnic composition. 51% population lives in Flemish region and used to speak Dutch language. Another 40% people speaks French and lives in Wallonia region. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French, and while 20% are Dutch speaking. So, what is the problem here? The minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by Dutch speaking community, who got the benefit of economic development and education much later. This led to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. Then Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. तो हम देखते हैं यहाँ की जो एक स्पेशल प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो ब्रुसेल्स
Brussels is the capital of Belgium, capital city, and where the Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. And the minority French speaking community was relatively rich and powerful. ये जो डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, ये रिच थी और पावरफुल भी थी. और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो इस बात से नाराज़ थे क्योंकि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जीने की काफ़ी बाद में चल कर के मिली, और इसकी वजह से टेंशन उन लोगों के बीच में, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ थी इनके बीच में टेंशन क्रिएट हुई. और इस तरह से लगभग 1950s और 1960s के बीच में काफ़ी तनाव था इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में. Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, इसको हम एक दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि कुछ किलोमीटर्स नीचे है साउथ कोस्ट के, तमिलनाडु का जो सदर्न कोस्ट है वहाँ से. एंड इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा. तो यहाँ पर लगभग 2 करोड़ लोग हैं, जितने की हरियाणा की पॉपुलेशन है लगभग उतनी ही. एंड लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. जो दूसरे नेशंस हैं साउथ एशिया रीजन में, उसी की तरह से जो श्रीलंका है इसकी भी जो पॉपुलेशन है इट इज़ डाइवर्स, है ना, तरह तरह की पॉपुलेशन है यहाँ पर. एंड द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंगला स्पीकर्स 74% and the Tamil speakers 18%. यहाँ पर जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो सिंगला स्पीकर्स हैं जो कि 74% हैं, और तमिल स्पीकर्स हैं जो 18% हैं. एंड among Tamils there are 2 सब ग्रुप्स. तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. अब जो तमिल नेटिव्स हैं कंट्री के, तमिल इनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जो कि 13% है. द रेस्ट हुज forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils. अब 18% में से 13% are श्रीलंकन तमिल्स and remaining 5% are called Indian Tamils because their forefathers came from India as plantation workers during colonial periods. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhists, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. You can see the map of Sri Lanka, ethnic communities of Sri Lanka. And in this map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country, and most of the Sinhala speaking people are Buddhist. ज़्यादातर जो सिंगला स्पीकिंग है वो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि ज़्यादातर जो तमिल्स हैं वो हिंदूज़ या मुस्लिम्स हैं, है ना. जितने सिंगला स्पीकिंग है वो बुद्धिस्ट हैं, जबकि तमिल्स जो हैं वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं.
and there are about 7% Christians. 7% Christians भी हैं यहाँ, who are both Tamil and Sinhala, जो कि तमिल भी हैं और सिंघला भी हैं. Just imagine what could happen in situations like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. अब बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो अपनी न्यूमेरिक मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा सकती थी और अपनी विल को, अपनी इच्छा को फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर फोर्स कर सकती थी. एंड दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज़ फर्दर. और इससे क्या होता कि जो कम्युनिटीज़ थी उनमें आगे चल करके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता. एंड दिस could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. और इससे क्या होता है, एक बहुत ही मेसी पार्टीशन, बहुत ही भद्दा पार्टीशन हो जाता, एक विभाजन हो जाता कंट्री का, और दोनों ही तरफ, दोनों ही साइड्स ब्रुसेल्स पर कंट्रोल करना चाहती. इन श्रीलंका the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. श्रीलंका में जो सिंघला कम्युनिटी थी उसने एक बड़ी मेजॉरिटी इंजॉय की, यहाँ पर बिगर मेजॉरिटी इंजॉय किया, और इसने यहाँ पर पूरी कंट्री पर अपनी विल इम्पोज की. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज. अब हम देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज में क्या होता है, श्रीलंका में और बेल्जियम में. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, majoritarianism in Sri Lanka. What do you understand by majoritarianism? What is majoritarianism? Related with majority. Majoritarianism means a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. तो एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी मान्यता कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इट शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री, है ना, ये कंट्री को पर शासन करने में सक्षम है अपनी विशेष के अकॉर्डिंग, जैसे भी ये चाहती है ये देश पर शासन कर सकती है. जो माइनॉरिटी है उसको डिसरिगार्ड करते हुए, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी अवहेलना करते हुए, चाहे उनकी जो विशेष हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको दरकिनार करते हुए, है ना, उनको डिसरिगार्ड करते हुए जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक समुदाय है ना, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार देश का शासन करना चाहता है अल्पसंख्यकों की अवहेलना करते हुए. ओके, नाउ श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हुआ, स्वतंत्र हुआ 1948 में. एंड द लीडर्स ऑफ द सिंघला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority. अब क्योंकि सिंघला स्पीकिंग पीपल की या सिंघला कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी, है ना, तो इस बेस पर वो डोमिनेंस सिक्योर करना चाहते थे गवर्नमेंट पर, है ना. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो consequently क्या होता है, परिणाम स्वरूप जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, भाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो होगी क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है, सिंघला स्पीकिंग की. तो इसलिए अब ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इसने एक अडॉप्ट किया है मेजॉरिटेरियन मेजर्स, है ना, की सीरीज़ को,
और जो कि सिंगुलर सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए, तो अपनी पावर को वहाँ पर इम्पोज करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स को अडॉप्ट करती है ये. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. तो इस तरह से 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है ताकि जो सिंघला है उसको सिर्फ सिंघला को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सके, तमिल की अवहेलना करते हुए. एंड द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंघला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स. तो इस तरह से जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी को फॉलो किया जो कि सिंघला एप्लीकेंट्स के फेवर में थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी की पोजीशंस के लिए हो, यूनिवर्सिटीज़ में पदों के लिए हो, या कि गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए हो. तो इस तरह से वो एक ऐसी नीतियाँ अपनाते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो करती है वहाँ की गवर्नमेंट जो कि सिंघला एप्लीकेंट्स के पक्ष में होती हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. और अब यहाँ का जो इनका नया संविधान था, इनका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, वो इस चीज़ को स्टिपुलेट करता है कि जो स्टेट है वो क्या करेगी, वो बुद्धिज्म को फॉस्टर करेगी, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि ज़्यादातर सिंगलीज क्या है, वो बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं वो, है ना. तो इसलिए अब इन्होंने ये नियम बनाया कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट का ही वहाँ पर डेवलपमेंट होगा. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब ये जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स थे, जो भी पॉलिसीज थी इनकी, एक के बाद एक उपाय जो भी ये अपना रहे थे, धीरे धीरे इससे एलियनेशन की फीलिंग इंक्रीज हो रही थी श्रीलंकन तमिल्स के बीच में. श्रीलंकन तमिल्स 18% श्रीलंकन तमिल्स थे ना, and there were subgroups in Sri Lankan Tamils. श्रीलंकन तमिल्स में भी कुछ नेटिव तमिल्स थे और कुछ इंडियन तमिल्स थे, है ना, who came from India as whose forefathers came from India as plantation workers. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. अब उनको ये अनुभव हो रहा था, वो ये मान रहे थे कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी नहीं है जिनको कि बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स लीड कर रहे हों, वो उनके प्रति संवेदनशील हों, है ना, उनकी लैंग्वेज को लेकर के, उनकी कल्चर को लेकर के ज़रा भी सेंसिटिविटी नहीं थी इन सिंघला लीडर्स में. तो they felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. अब वो फील कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके लिए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई कर रही हैं, अनदेखा कर रही हैं, और इसके साथ साथ जॉब्स पाने के लिए इसमें भी उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ थी और इसके अलावा जो दूसरे उनके हित की चीज़ें थी, उनके लाभ की चीज़ें थी, फ़ायदे की चीज़ें थी, वो सब की सब इग्नोर की जा रही थी. तो एज ए रिज़ल्ट द रिलेशंस between the Sinhala and the Tamil communities strained over time. तो क्या होता है फिर इसके परिणाम स्वरूप, जो रिलेशंस थे
सिंगला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच इनमें काफ़ी तनाव आ गया समय के साथ. द श्रीलंकन तमिल्स launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. तो अब जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने कुछ पार्टीज़ लॉन्च की और स्ट्रगल्स शुरू किए ताकि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सके. ताकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है कि मतलब जो भी स्टेट का जो भी काम काज है ना, ऑफिसेज में, कार्यालयों में और स्टेट में, वो तमिल लैंग्वेज में हो या जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसमें किया जाए. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, जो भी वहाँ की के रीजन्स थे उसकी ऑटोनॉमी के लिए, उसकी स्वायत्तता के लिए, और इसके साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटी थी, इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब समानता, और इसके साथ ही एजुकेशन सिक्योर करने में इक्वालिटी और जॉब्स सिक्योर करने के लिए, सब चीज़ के लिए वो इक्वालिटी चाहते थे. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड. लेकिन उनकी जो डिमांड थी, जो मांग थी कि जो प्रोविंसेस पॉपुलेटेड है तमिल से, जहाँ की तमिल पॉपुलेशन ज़्यादा है जिन प्रांतों में, जिन रीजन्स में, उसकी ऑटोनॉमी की डिमांड को बार बार रिपीटेडली डिनाई किया जा रहा था, मना किया जा रहा था, अनदेखा किया जा रहा था. एंड बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam, means state, in northern and eastern parts of Sri Lanka. तो 1980s तक बहुत सारे राजनीतिक संगठन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो गए थे एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड को लेकर के, है ना. अब इन लोगों ने ये मांग कर रहे थे कि एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाया जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में श्रीलंका के. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. अब ये जो अविश्वास था, ये जो डिस्ट्रस्ट था दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में, सिंगला और श्रीलंकन तमिल्स जो थे, है ना, इसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. और जल्दी ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इट वॉज टर्न्ड इनटू ए सिविल वॉर. एक शीत युद्ध में ये चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया. ये सिविल वॉर क्या होता है? व्हाट इज सिविल वॉर? सिविल वॉर इज ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री दैट बिकम्स so intense that it happens like a war. तो एक हिंसा बढ़ जाती है जब एक ही कंट्री में रहने वाले दो विरोधी समूहों के बीच में, दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में, और इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, इतना ज़्यादा इसमें तीव्रता आ जाती है, इतना ज़्यादा शार्प हो जाता है ये वायलेंस कि ऐसा लगता है कि युद्ध हो रहा है. एंड दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर. एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. तो अब क्या होता है, सिविल वॉर की वजह से हज़ारों लोग दोनों ही कम्युनिटीज़ के मारे जाते हैं. बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे परिवारों को मजबूर होना पड़ता है कि वो अपने देश को, अपनी कंट्री को छोड़ करके रिफ्यूजीज़ की तरह से, शरणार्थियों की तरह से वो भाग जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं. और बहुत सारे लोग अपनी आजीविका भी खो देते हैं, अपने लाइवलीहुड्स खोने पड़ते हैं सबको, अपनी जीविका के साधन लोगों को खोना पड़ता है.
Then you have read chapter 1 of economics textbook, that is development, class 10, about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health. आपने पढ़ा है क्लास 10th में, फर्स्ट चैप्टर है जो इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक का डेवलपमेंट, श्रीलंका का जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का और हेल्थ का. बट द civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. लेकिन ये जो सिविल वॉर था इसकी वजह से बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा. यहाँ जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ थी उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कंट्री का इसमें. तो इट एंडेड, दिस सिविल वॉर एंडेड इन 2009. Okay, now that's all for today. The next topic will be discussed in the next video. Okay, thank you children.